جی ناظرین، اہم اعلان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دسمبر 2020 میں کراچی آ رہا ہوں، کراچی میں موجود ہوں گا۔ کراچی میں جو لوگ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کال کر کے اپائنٹمنٹ کی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ جنوری 2021 سے علم نجوم اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ دسمبر تک ایڈمیشن اوپن ہے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ اس میں جو اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ محدود ہے۔ اب دنیا میں کہیں پہ بھی بستے ہیں، آپ اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ AQ جیم سٹونز کا بھی باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اصلی اور معیاری نگینے اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، AQ جیم سٹون پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا YouTube چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم۔ اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل سے منتھلی ہورoscope کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نومبر کا ماہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے برج حمل ایریز کے حوالے سے۔ برج حمل کا نومبر کا پہلا ویک کسی اجتماعی پروگرام یعنی شادی بیاہ کے پروگرام میں شرکت کا امکان ہے۔ آپ کی عزت اور شہرت میں اضافہ ہوگا۔ ملازم پیشہ افراد اپنے فرائض میں منصبی احسن طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ دفتر کی کسی تنظیم کی جانب سے بعض لوگوں کو انعام ایوارڈ ملنے کی توقع ہے۔ کاروباری ساکھ میں بھی اضافہ دکھائی دیتا ہے۔ حالات کو بہتری کی طرف گامزن دیکھ کر آپ کی جو شخصیت ہے اس میں نکھار رہے گا۔ شراکت داری کرنا نیک ہے۔ اس ماہ کا دوسرا ویک آپ کی دیرینہ خواہشات کی تکمیل کا پورا امکان ہے۔ آپ کے بعض خواب حقیقت کا روپ دھار لیں گے۔ ادھورے کاموں کی تکمیل ہو سکے گی۔ کسی بچھڑے ہوئے ساتھی یا دوست سے ملاقات کا امکان ہے جن سے مخالف کی طرف رغبت بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ دوسروں سے وابستہ امیدیں پوری ہو سکیں گی۔ حکام بالا، افسران بالا کا تعاون حاصل رہے گا۔ اس ماہ کا تیسرا ویک بعض غیر شادی شدہ افراد کے لیے نیک اور خوش بخت ثابت ہوگا۔ کاروبار میں خیر و برکت رہے گی۔ آمدنی میں اضافے کی صورت پیدا ہوگی۔ کاروباری اسکیموں کو بروئے کار لا کر غیر متوقع فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ نیا کاروبار کرنا مفید ثابت ہوگا، البتہ شراکت داری امور کے پروگراموں میں حصہ لینے سے گریز کریں۔ اپنی صحت جسمانی کا خاص خیال رکھیں۔ زیادہ نقل و حرکت اور غذا کے استعمال میں احتیاط کریں۔ اس ماہ کا چوتھا ویک ثقافتی اور ادبی محفلوں میں حصہ لیا جا سکے گا۔ حصول سائنسی تعلیم کا شوق پیدا ہوگا۔ تحقیق و تجسس کا مادہ ابھرے گا۔ گھریلو سکون قائم رکھنے کے لیے زیادہ وقت اہل خانہ کو دیں۔ شریک حیات سے تعلقات کشیدہ ہونے کا امکان ہے۔ گھریلو امور کو سلجھانے کے لیے جذبات پر کنٹرول رکھیں۔ خانگی امور میں بزرگوں کا تعاون حاصل رہے گا۔ سیر و تفریح کا پلان بن سکتا ہے۔ شراکتی کاروباری معاہدے کرنا مفید ثابت ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج ثور ٹورس کی جانب۔ برج ثور ٹورس اس ماہ کا پہلا ویک نومبر کا مستقبل کے متعلق منصوبہ بندی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی پروجیکٹ نیا شروع کرتے وقت منصوبوں پر عمل درآمد سے پہلے ان پر نظر ثانی کر لیں۔ خدمت خلق کا موقع ملے گا۔ دوسروں سے مسائل سمجھنے اور انہیں سلجھانے کی کوشش کریں۔ معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ذہنی صلاحیتیں بھی اجاگر ہوں گی۔ اپنی صحت جسمانی کا خاص خیال رکھیں۔ ترقی کی کوششیں کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اس ماہ کا دوسرا ویک آپ کی نئی سرمایہ کاری دکھائی دیتی ہے۔ اس کا موقع ملے گا۔ نیا کام خود کرنا یا کسی عزیز کی شراکت سے کرنا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ کام کی دیکھ بھال اور حساب کتاب اپنی نظر میں رکھ سکیں گے۔ فضول خرچی سے گریز کریں۔ حالات کے بگڑنے کا خدشہ ہے۔ بعض رکے ہوئے کام پایہ تکمیل کو پہنچ سکیں گے۔ دوست احباب کا تعاون شامل حال رہے گا۔ رومانس کے لیے حالات کافی سازگار ہیں۔ اس ماہ کا تیسرا ویک کاروباری مقاصد کے تحت کیا جانے والا سفر وسیلہ ظفر ثابت ہوگا۔ ملازمت پیشہ حضرات فرائض منصبی کی بجا آوری میں غفلت اور لاپرواہی نہ برتیں۔ مخالفین پر غلبہ حاصل ہوگا۔ سماجی اور ادبی محفلوں میں
शिरकत और इज़्ज़त व शोहरत भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। मुख्तलिफ़ परेशानियों का ख़ात्मा हो सकेगा। घर के सकून और आराम के लिए शरीक हयात से ताउन ज़रूरी है। इस माह का चौथा वीक कोई अहम खुशखबरी मिल सकेगी। रोमांस करने का मौका मिलेगा। अंदरूनी खाना हालात बेहतर रहेंगे। दूसरों को अपने घरेलू हालात में मदाखलत का मौका ना दें। अहम फ़ैसले बेहतर अंदाज में कर सकेंगे। मकासद के हसूल के लिए शराकती कामों पर तवज्जो मरकूज़ रहेगी। मोहब्बत में कामयाबी, अज़ीज़ व अक़ारब के ताउन से मामलात में बेहतरी आ सकेगी। तबीयत में एडवेंचर जो है वो पाया जाता है और मकासद के हसूल के लिए रिस्क भी लेते हुए दिखाई देते हैं। दोस्त अहबाब के साथ लंबे सफ़र का प्लान बन सकता है। आइए बात करते हैं बुर्ज जौज़ा जेमिनी की। बुर्ज जौज़ा जेमिनी, नवंबर का माह कैसा रहेगा? पहला वीक आपकी ख्वाहिशात की तकमील का वीक है। आपकी इज़्ज़त व शोहरत में इजाफ़ा होगा। बाज़ मुलाज़मत पेशा अफराद के ओहदे में तरक्की होगी और किसी इनाम से नवाजे जाने का इम्कान है। हकाम बाला की आप पर ख़ास इनायत होगी। आपकी तख्लीकी सलाहियत और ख़ुद एतमादी में इजाफ़ा दिखाई देता है। दूसरों को मुख्तलिफ़ मामलात में कंट्रोल कर सकेंगे। इज्तिमाई महफ़िलों में शिरकत का मौका मिलेगा। इस माह का दूसरा वीक आपके मुफीद मशवरों से दूसरे लोग मुस्तफ़ीद होते हुए दिखाई देते हैं। आप भी दूसरों के बाज़ अच्छे ख़यालात और तौर तरीक़ों से फ़ायदा उठाएंगे। रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात पैदा होंगे। बाज़ मुखालिफिन आपकी इज़्ज़त व शोहरत से नाखुश होंगे और आपसे ख़ाइफ़ दिखाई देते हैं। खिदमत खल्क़ के कामों में रग़बत बढ़ेगी। मिले जुले हालात दिखाई देते हैं। इस माह का तीसरा वीक सियासी और समाजी तक़रीबात में शिरकत का मौका मिलेगा। नया कारोबार करना मुफीद रहेगा। ठोस बुनियादों पर लगाया गया सरमाया फ़ायदेमंद साबित होगा। कारोबारी अमूर हज़्म मंशा हल होते हुए दिखाई देते हैं। गुज़श्ता परेशानियों और रुकावटों का अज़ाला भी होगा। कारोबार में गैर मुतवक्को मुनाफ़े का इम्कान है। दोस्तों के साथ किसी तफरीही मुकाम की सैर का प्रोग्राम बन सकता है। इस माह का चौथा वीक आमदन और ख़र्च में यकसानियत दिखाई देती है। इल्मी और अदबी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकेंगे। ज़मीन जायदाद के मसाइल भी आपके हस्ब मंशा हल होते हुए दिखाई देते हैं और इसके साथ ख़वातीन ज़्यादा रुझान शॉपिंग की तरफ दिखाई देता है। ट्रैफिक के मामलात में एहतियात बरतें। छोटा सफ़र पेश आ सकता है। आपकी सेहत जिस्मानी खूब रहेगी लेकिन काम की ज़्यादती नुकसान दे सकती है। लिहाजा आराम के लिए वक्त ज़रूर निकालें और रोमांस के लिए माहौल बड़ा साजगार दिखाई देता है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर, इस माह नवंबर का पहला वीक दोस्तों के साथ मेल जोल बढ़ने का वीक है। इनके साथ मिलकर तफरीही प्रोग्राम बन सकते हैं। किसी पिकनिक पार्टी का भी एहतमाम हो सकेगा जिससे आप काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। गुज़श्ता पैदा शुदा मसाइल हल करने का मौका मिलेगा। आपकी इनफरादी सलाहियतों में इजाफ़ा होगा। तामीरी कामों में हिस्सा लेते हुए दिखाई देते हैं। शरपसंद अनासर आपके ख़िलाफ़ साजिश के मुर्तकिब होंगे। इस माह का दूसरा वीक कोई भी नया काम करने से पहले अच्छी तरह मालूमात हासिल करें और कागज़ात पर दस्तखत करते वक्त अच्छी तरह जाँच पड़ताल कर लें। बाज़ मुखालिफिन आपकी शोहरत को नुकसान पहुँचाने के दरपे हैं। मोहतात रहें। सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें। हर लिहाज से आपके लिए ये वीक मुबारक साबित होगा। रिश्तेदारों से ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम दिखाई देते हैं। माली फ़वाइद हासिल होंगे। सफ़र से अवॉइड करें। इस माह का तीसरा वीक आपके करियर में इजाफ़ा दिखाई देता है। मुख्तलिफ़ मुआहदात तय पाएंगे। इस सिलसिले में कोई सफ़र भी पेश आ सकता है। कारोबार में वक्ती रुकावट आने का इम्कान है। परेशान ना हों। जायदाद की ख़रीद व फ़रोख्त फ़ायदेमंद दिखाई देती है। आमदनी और ख़र्च बैक वक्त बढ़ेंगे लेकिन अखराजात पर कंट्रोल दिखाई देता है। मुलाज़मती अमूर की अदायगी ऐसे तरीके से करेंगे। हालात साजगार दिखाई देते हैं। इस माह का चौथा वीक रोमानवी माहौल साजगार दिखाई देता है। आपकी खुशियों में इजाफ़ा होगा। अहले खाना की तरफ से सुकून मिलेगा। अंदरून खाना खैर व आफ़ियत से ज़िंदगी पुरसकून होगी। शरीक कार के ताउन से कारोबार खूब तरक्की करेगा। शरीक हयात की सेहत का ख्याल रखें। कारोबारी अमूर सुलझाते वक्त बुज़ुर्गों और मुखलिसीन का ताउन हासिल होगा। आपकी सुस्ती और काहली तरक्की की बजाय तनज़ली का बायस हो सकती है। जल्दबाजी में किया गया काम नुकसानदेह साबित होगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब।
برج اسد لیو نومبر کا ماہ کیسے گزاریں گے؟ پہلا ویک اگر دیکھیں تو حصول تعلیم کا شوق سر ابھارے گا، دوستوں کے ساتھ تفریح پر جانے کا پروگرام بن سکتا ہے، مکمل تندہی سے رکے ہوئے کام نپٹا سکیں گے، سفر کا امکان ہے اور آپ اس سے لطف اندوز ہو سکیں گے، بعض اہم لوگوں سے ملاقات ہو سکے گی جو کاروباری ترقی کا باعث ہوگی، نئے مقامات دیکھنے کا موقع ملے گا، مطالعے کی طرف رجحان ہوگا، اس ماہ کا دوسرا ویک محنت کا صلہ مل سکے گا، لوگوں کے ساتھ میل ملاقات بڑھے گی، کاروباری ذمہ داریوں میں اضافہ ہوگا، آپ کی ذاتی مصروفیت بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کاروبار میں نئی سرمایہ کاری کر کے آپ منافع حاصل کر سکتے ہیں اور مزید ترقی کر سکتے ہیں، اخراجات میں اضافے کا امکان ہے جو کہ تعلیمی یا سفر کے اخراجات کی صورت میں ہوگا۔ اس ماہ کا تیسرا ویک مشترکہ مفادات کے پروگرام میں حصہ لینا بہتر ہے، لاپرواہی سے کام نہ لیں بلکہ کام کی دیکھ بھال خود کریں، غور و فکر سے کیے گئے کاموں سے منافع کما سکیں گے، سائنس اور ادب میں دلچسپی بڑھے گی اور عزیز و اقارب سے وابستہ توقعات پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، فضول خرچی سے بھی گریز کرنا ہے، کاروباری معاملات خاص توجہ کے حامل ہیں، مسائل میں اضافہ پریشانی کا باعث رہے گا۔ اس ماہ کا چوتھا اور آخری ویک جائیداد کی خرید و فروخت فائدہ مند دکھائی دیتی ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے کے مواقع ملیں گے، دوسروں سے معاملات نمٹاتے وقت جذباتیت کا مظاہرہ نہ کریں بلکہ تحمل مزاجی سے کام لیں، آپ کی صحت جسمانی بہتر رہے گی، بعض رکے ہوئے کام اللہ کی رضا سے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، رومانوی ماحول سازگار رہے گا، اہل خانہ کی طرف سے سکون ملے گا، بچوں کی نگہداشت کی طرف توجہ دیں، گھر کی تزئین و آرائش کر سکیں گے، آرام کرنے کا موقع ملے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج سملہ ورگو کی جانب۔ برج سملہ ورگو نومبر کا ماہ کیسے گزاریں گے؟ سب سے پہلا ویک نیک نامی میں اضافہ دکھائی دیتا ہے، تعلیمی لحاظ سے بھی آپ کافی ترقی کریں گے، سماجی اور ادبی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا موقع ملے گا، تحقیق و تجسس کا مادہ ابھرے گا جس کی وجہ سے آپ کافی مسائل حل کر سکیں گے، کائنات کے مختلف اسرار اور رموز جاننے کی کوشش کریں گے، سائنسی مشاہدات اور تجربات سے فائدہ اٹھا سکیں گے، کاروبار ترقی کی جانب گامزن رہے گا۔ اس ماہ کا دوسرا ویک بے روزگار افراد کو روزگار کے مواقع میسر ہوں گے، آپ کی بعض خواہشات کی تکمیل ہوگی، دوسروں سے وابستہ امیدیں پوری ہوں گی، زیادہ تر رجحان شاپنگ کی طرف ہوگا، گھر کی تزئین و آرائش کی طرف توجہ ہوگی، دوستوں کے ساتھ میل ملاپ بڑھے گا، اہل خانہ کے ساتھ تفریحی پروگرام بن سکے گا۔ اس ماہ کا تیسرا ویک آپ کا نہایت مصروف ہے، دوسروں سے وابستہ امیدیں برابر نہ ہوں گی، مختلف سماجی اور کاروباری تفریحات میں حصہ لے سکیں گے، آپ کے گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت رہے گی، ملازم پیشہ افراد اپنی ملازمتی امور کی سنجیدگی سے ادا کریں، دوران گفتگو بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ مہذبانہ رویہ اختیار کریں، سفر سے گریز کریں۔ اس ماہ کا چوتھا اور آخری ویک کاروبار میں مزید سرمایہ لگا کر اسے وسعت دے سکیں گے، گزشتہ بنائے گئے منصوبوں پر عمل درآمد ہو سکے گا، بعض معاملات میں شریک کار کا تعاون حاصل نہیں ہو سکے گا، کسی میٹنگ میں حصہ لینے کا موقع ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے، نئے معاہدات کر سکیں گے لیکن معاہدہ کرتے وقت محتاط رہیں، روپے پیسے کا لین دین کرتے وقت بھی محتاط رہیں، دھوکہ دہی کا خدشہ پایا جاتا ہے، رومانوی ماحول سازگار رہے گا، فریقین کے مابین مفاہمت رہے گی، اندرون خانہ خیر و عافیت بڑھے گی، گھریلو مسائل کو حل کر لیا جائے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج میزان لبرا کی جانب۔ برج میزان لبرا نومبر کا ماہ کیسا رہے گا؟ سب سے پہلا ویک کسی عزیز یا دوست کی شراکت سے نیا کاروبار شروع کر سکیں گے، کچھ افراد دوسرے ذرائع یعنی انشورنس یا کسی اور وسیلے سے رقم حاصل کر سکیں گے، مالی لحاظ سے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت مبارک ہے، روزمرہ کے معاملات میں کچھ تبدیلی کا امکان ہے، اپنے پرانے اور فرسودہ خیالات اور روایات کو ترک کر سکیں گے، سفر کے متعلق پلان بن سکتا ہے، نزلہ زکام یا کھانسی کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اس ماہ کا دوسرا ویک کاروباری مصروفیات میں اضافہ ہو جائے گا، خط و کتابت، میسیجنگ، انٹرنیٹ، ای میل کا استعمال، ٹیلی فون کی وجہ سے کافی مصروفیت رہے گی، نئے کاروباری منصوبے بنائے جا سکیں گے، کاروباری معاہدے کرتے وقت جلد بازی سے کام نہ لیں،
तहरीरी मुआहदे करते वक्त कागजात की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें ताकि बाद में किसी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। शॉपिंग का मौका मिलेगा, आराम करते हुए दिखाई देते हैं। इस माह का तीसरा वीक गुज़श्ता किए गए मुआहदों पर अमल दरामद से कामयाबी नसीब होगी। बाज़ मामलात में शरीक कार का ताउन हासिल नहीं होगा। काम की देखभाल आपको खुद करनी पड़ेगी। घरेलू मसाइल उलझ सकते हैं। बच्चों की तालीम व तरबियत के अमूर तवज्जो तलब होंगे। मुलाजमत पेशा अफराद अपने काम के सिलसिले में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। इस माह का चौथा वीक आपके अंडर जितने भी काम करने वाले अफराद हैं उनके ताउन से अहम कामों की तकमील हो सकेगी। इनफरादी सलाहियतों में इजाफ़ा दिखाई देता है। अदबी सरगर्मियों में रुझान रहेगा। इसके साथ साथ गम व गुस्से का इजहार नुकसानदेह साबित हो सकता है। मोहतात रहें। मोहब्बत रोमांस का माहौल बड़ा खुशगवार रहेगा, उसको मज़ीद बेहतर करें। अपने मसाइल ख़ुद निपटा सकेंगे। दोस्तों के साथ किसी रूह अफ़ज़ा मुकाम की सैर व तफरीह का प्रोग्राम बन सकेगा। शरीक हयात से ताउन करें। अहल खाना खैरियत से रहेंगे। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो, नवंबर का माह कैसा रहेगा? पहला वीक अगर देखा जाए तो तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लेना फ़ायदेमंद रहेगा। किसी लंबे सफ़र के लिए रवाना हो सकेंगे। नए मुकामात देखने और नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। मुताले के लिए नया मवाद मिलने के मौक़े हैं। मेहमानों की आमदोरफ़्त जारी रहेगी। बाज़ ख्वाबों के पूरे होने का इम्कान है। दूसरों की मदद करने का मौका मिलेगा जिससे इनको फ़ायदा होगा। इस माह का दूसरा वीक मुख्तलिफ़ समाजी तक़रीबात में हिस्सा ले सकेंगे। आपकी शख्सियत और हैसियत में इजाफ़ा होगा। आपकी ज़िंदगी में पैदाशुदा बाज़ मसाइल और रुकावटें ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगी। रिश्तेदार और आपके माबैन जो रंजिशें या शकूक पाए जाते हैं इनका अज़ाला कर सकेंगे। खुश अखलाक़ी से कारोबार मज़ीद तरक्की करेगा। मुखलिस अहबाब का ताउन हासिल होगा। हालात मिले जुले रहेंगे। इस माह का तीसरा वीक किसी बिछड़े हुए साथी से मिलने का इम्कान है। नई कारोबारी मनसूबाबंदी कर सकेंगे। समाजी मसरूफ़ियात में इजाफ़ा होगा। कारोबार के सिलसिले में किसी मीटिंग में शिरकत मतवक्को है। मुश्तरका मुफाद के प्रोग्राम में शिरकत करना या शरीक कार से ताउन करेंगे। छोटी छोटी बातों पर उलझने की बजाय समझौते को तरजीह दें। कारोबार की गर्ज से सफ़र दिखाई देता है। इस माह का चौथा वीक शरीक कार के साथ इत्तफाक से काम करें, इसी में आपकी बेहतरी है। रोमानवी माहौल साजगार रहेगा। आराम करने का मौका मिलेगा। फ़रीक़ैन के माबैन पैदा शकूक व शुबहात का अज़ाला हो सकेगा। अहले खाना की निगहदाश्त की जानिब रुझान रहेगा। अंदरून खाना खैरियत होगी। नया कारोबार करना मुफीद साबित होगा। सफ़र से गुरेज करें, कारोबारी तरक्की कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सजिटेरियस की जानिब। बुर्ज कौस सजिटेरियस, नवंबर का माह कैसा रहेगा? सबसे पहला वीक अगर देखा जाए तो मुश्तरका मुफाद के प्रोग्राम में हिस्सा ले सकेंगे। अकेले कोई काम शुरू करने की बजाय शराकत को तरजीह दें। मुखलिस दोस्तों का ताउन शामिल रहेगा। कारोबारी तरक्की रहेगी। शादीशुदा अफराद को अपनी शरीक हयात की जानिब से खुशी और सुकून मुयस्सर होगा। रफ़ाही कामों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। समाजी कामों से इज़्ज़त व वक़ार में इजाफ़ा होगा। इस माह का दूसरा वीक कारोबार को मज़ीद मुस्तहकम कर सकेंगे। रिश्तेदारों से मरासम बढ़ेंगे। गुज़श्ता पैदाशुदा कशीदगी ख़त्म हो सकेगी। बाज़ मामलात में कुछ लोग गलत किस्म की अफवाहें उड़ाएंगे। कारोबारी मसरूफ़ियात और ज़िम्मेदारी में इजाफ़ा दिखाई देता है। अहम अमूर की अंजाम दही में गफलत और लापरवाही नुकसान का बायस हो सकती है। अपने राज किसी पर अफशा ना होने दें। मोहतात रहें। इस माह का तीसरा वीक मुलाजिम पेशा अफराद के लिए अपने फ़राइज़ मनसबी से गफलत बरतने का नहीं है। कारोबारी हसरात नए मुआहदे कर सकेंगे। गुज़श्ता किए गए कामों से नफ़ा हासिल होगा। नई सरमायाकारी करना मुफीद रहेगा। चंद एक कारोबारी मसाइल से दो चार हो सकते हैं। मोहतात रहें। सेहत जिस्मानी का ख़ास ख्याल रखें। दूर दराज के सफ़र से गुरेज करें। इस माह का चौथा वीक रोमानवी माहौल साजगार रहेगा, लेकिन इस सिलसिले में लापरवाही ना बरतें और रोमानवी माहौल को पोशीदा रखने की कोशिश करें। अंदरून खाना हर तरह से खैरियत और आफ़ियत दिखाई देती है। बच्चों की इज़्ज़त से सुकून मुयस्सर होगा। आपकी खुशियों में इजाफ़ा दिखाई देता है।
सियासी और समाजी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहेंगे, जिससे शख्सियत मज़ीद पुरवकार हो सकेगी। मुलाजमत में कोताही से तरक्की के इम्कानात कम हो सकते हैं। दूसरों से वाबस्ता उम्मीदें बराबर ना होंगी। मुताले का शौक़ बढ़ेगा। शरीक हयात का ताउन हासिल रहेगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न नवंबर का माह कैसा रहेगा? सबसे पहला वीक अगर मैं देखूं तो मुलाजमती ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा होगा। ऐसे मौक़े मुयस्सर होंगे कि इनसे अच्छे तरीके से ओहदाबर हो सकेंगे। अहम मकसद के तहत सफ़र करने का इम्कान है। दौरान सफ़र अपने सामान की हिफाजत खुद करें। दूसरों पर भरोसा करते वक्त लापरवाही से काम ना लें, बल्कि अपने काम खुद अपनी ज़ेरे निगरानी करवाएं। दोस्तों की आमद से माहौल मज़ीद खुशगवार हो सकेगा। आराम करने का मौका भी मिलेगा। इस माह का दूसरा वीक साबका मामूलात और रवायात के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। समाजी तकरीबात में शिरकत दिखाई देती है। अपनी इनफरादी सलाहियतों से कारोबार को तरक्की की राह पर गामज़न कर सकेंगे। बाज़ कामों में वक्ती रुकावटें आने का ख़दशा है, लेकिन जल्द ही इन पर काबू पा लिया जाएगा। दोस्तों के साथ तफरीही प्रोग्राम बना सकेंगे। रोमानवी माहौल साजगार रहेगा। शॉपिंग का प्रोग्राम बन सकता है। इस माह का तीसरा वीक कारोबारी पोजीशन मुस्तहकम रहेगी। पेशा वाराना अमूर की अंजाम दही से माली मफ़ायद मिलेंगे। अहम कामों की तकमील हो सकेगी। अपने कारोबार को मज़ीद तरक्की देने के लिए अपनी सलाहियतों को बुरुए कार लाएँ। तजर्बाकार और मुखलिस अहबाब का मशवरा भी सूदमंद साबित होगा। नए मुआहदात करते वक्त मोहतात रहें। दानिशमंदाना रवैया अख्तियार करें। चंद हज़रात की मंगनी या शादी तय हो सकती है। इस माह का चौथा वीक मुलाजमत पेशा अफराद अपने फ़राइज़ में कोताही से गुरेज करें। दौरान मुलाजमत माली फ़वाइद का हसूल मुमकिन हो सकेगा। ओहदा और मर्तबे में तरक्की का इम्कान है। कारोबारी मामलात में आप काफ़ी एक्टिव दिखाई देते हैं। मुखालिफिन से बहरहाल मोहतात रहना है। सेहत जिस्मानी कदरे बेहतर रहेगी। रूहानी माहौल खुशगवार है। फ़रीक़ैन के माबैन मुफाहमत बढ़ेगी। बुज़ुर्गों और शरीक हयात के ताउन से घरेलू मसाइल को सुलझा सकेंगे। अहले खाना के साथ सैर व तफरीह के प्रोग्राम बन सकते हैं। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज दल्व एक्वेरियस नवंबर का माह कैसा रहेगा? सबसे पहला वीक अगर मैं देखूं तो दूसरों की खिदमत करने का मौका मिलेगा। गुज़श्ता बिगड़े हुए काम समझ जाएंगे। ऐसे काम कर सकेंगे जिससे दूसरों को फ़ायदा मुमकिन हो। दफ्तरी अमूर तवज्जो तलब होंगे। मुलाजमत की निस्बत अपने कारोबार को ज़्यादा तरजीह दें। नया काम शुरू करना मुफीद रहेगा। बाज़ बेरोज़गार अफराद को रोज़गार मिलने के मौक़े हैं। इस माह का दूसरा वीक मकसद पूरा होता हुआ दिखाई देता है। आपका कोई भी मकसद हो, अपनी सेहत जिस्मानी का ख़ास ख्याल रखें। बाकायदा मेडिकल चेकअप करवाएं। मुश्तरका मुफाद के प्रोग्रामों में कामयाबी हासिल हो सकेगी। शरीक कार का ताउन हासिल रहेगा। कारोबारी अमूर को ऐसे तरीके से अदा कर सकेंगे। नए कारोबारी मुआहदे करते हुए दिखाई देते हैं। ठोस बुनियादों पर की गई सरमायाकारी फ़ायदेमंद साबित होगी। इस माह का तीसरा वीक कारोबारी मामलात सुलझाने के लिए बुज़ुर्गों का ताउन हासिल होगा। कारोबारी पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम होगी। घरेलू मसाइल पर काबू पा सकेंगे। मुलाजम पेशा अफराद ने मुलाजमती अमूर की बजा आवरी ऐसे तरीके से अगर करेंगे तो बहुत फ़ायदा है। हकाम बाला से ताउन दिखाई देता है। हल्का अहबाब वसी होगा। और इसके साथ चौथा वीक अगर मैं नवंबर का देखूं तो दोस्तों के साथ तफरीही प्लान बनेगा। किसी समाजी तकरीब में शिरकत का इम्कान है। अदबी तकरीबात में शिरकत का शौक़ उजागर होगा। मालूमात में इजाफ़ा होगा। रोमानवी माहौल खुशगवार बनाने की कोशिश करें। तहम्मुल मिजाजी का मुज़ाहरा करें। शरीक हयात की सेहत का ख़ास ख्याल रखें। ज़रा सी लापरवाही किसी ख़तरनाक बीमारी का बायस बन सकती है। तालीमी लिहाज से काफ़ी तरक्की करते हुए दिखाई देते हैं। और रुपए पैसे का लेन देन करते वक्त मोहतात रवैया अपना कर रखें। धोखा दही का अंदेशा है। दूसरों से वाबस्ता उम्मीदें बहरहाल पूरी होंगी। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसिस की जानिब।
बुर्ज हूत पाइसिस नवंबर का माह कैसा रहेगा? पहला वीक अगर मैं देखूं तो मुश्तरका मुफाद के कारोबार में सरमायाकारी फ़ायदेमंद साबित होगी। शरीक कार का मुखलिसाना ताउन शामिल रहेगा। कारोबार तरक्की की राहों पर गामजन हो सकेगा। घरेलू सुकून मुयस्सर आएगा। शरीक हयात का ताउन हासिल होगा। खानगी खुशियों में इजाफा दिखाई देता है। मसरूफियात में इजाफा भी रहेगा। इस माह का दूसरा वीक काम की ज़्यादती रहेगी। कारोबारी अमूर नहायत दानिशमंदी और अक्ल से अदा करें। लोगों के फजूल मशवरों और बातों पर कान ना धरें बल्कि अपनी अक्ल और शऊर से काम लें। जल्दबाजी से कोई काम ना करें वरना मुख्तलिफ़ कामों में रुकावटें पैदा होने का ख़दशा है। घरेलू परेशानी लाक होने का इम्कान है। नए लोगों से मेल जोल बढ़ेगा। सफ़र का प्लान बन सकता है। इस माह का तीसरा वीक मुख्तलिफ़ मनसूबाजात को अमली शक्ल दे सकेंगे और मकासद की तकमील करते हुए दिखाई देते हैं। कारोबारी मुआहदों के मुतालिक फ़ाइनल फ़ैसला कर सकेंगे। कारोबारी पोजीशन तसल्ली बख्श रहेगी। आमदनी और अखराजात दोनों बजक वक्त बढ़ेंगे। किसी खानगी परेशानी से दो चार हो सकते हैं। मुलाज़िम पेशा अफराद मुलाजमती अमूर की अदायगी मेहनत से करें। मुलाजमती अमूर में कामयाबी से हमकिनार होते हुए दिखाई देते हैं। इस माह का चौथा वीक कारोबारी मकासद के तहत किया जाने वाला सफ़र कामयाब रहेगा। खुफिया अमूर एहतियात तलब होंगे। कोई भी गलत कदम हैसियत व शख्सियत पर हर्फ ला सकता है, लिहाजा राज के अफशा का भी इम्कान है। मोहतात रहें। मुख्तलिफ़ तकरीबात में शिरकत के मौके मिलेंगे जहाँ बहसीयत अफराद से मुलाकात हो सकेगी। मामलात इश्क व मोहब्बत खुशगवार रहेंगे। फ़रीक़ैन के माबैन मुफ़ाहमत दिखाई देती है। औलाद की बेहतरी का सामान मिलेगा। मुस्तक़बिल के मुतल्लिक़ मनसूबाबंदी हो सकेगी। हसूल रिज़्क़ के लिए मुख्तसर सफ़र फ़ायदेमंद साबित होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।